خداوند کے پاک قادر اور جلالی نام میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ خدمتوں کے تعلق سے بات چیت ہماری چل رہی تھی اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے اپنا اپنا جو ہے وہ نظریہ پیش کیا ہے، اور جس طرح کہ میں نے پیشتر بھی ایک اور آڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں نیوٹرل ہو کر بالکل سرنڈر کر کے آنا ہے، اور جتنا زیادہ ہمیں چیزیں کھینچیں ان معاملات میں، فورسز کھینچیں کہ ہم کوئی اوپینین اسٹیبلش کریں اپنے ذہن میں، اتنا ہی زیادہ ہمیں خداوند میں جو ہے وہ جستجو کرتے ہوئے نیوٹرل رہنا ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی میں کو مار دیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ آج اس چیز کا جو ہے وہ آپ سب سے پہلے اس چیز کا ذہن بنائیں کہ آپ بہت زیادہ روحانی نہیں ہیں، کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسپیشلی خدا کی گفتگو چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک وقت تھا ایلیا نبی کو بھی ایسا لگتا تھا کہ وہی ایک روحانی ہے اور دوسرا کوئی نہیں، تو خداوند نے کہا تھا 7,000 میں نے جو ہے نا ابھی بھی بچائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7,000 جو ہیں وہ رکھے ہیں ایسے جنہوں نے بال کیا کہ جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے، ٹھیک ہے۔ یہ مت سوچو کہ جناب آپ اکیلے ہو، اور بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ایک بار میں پڑھ لوں۔ اگر رومنس میں جا کے آپ دیکھیں، رومنس چیپٹر 11 اور اس کی اگر میں تیسری آیت سے پڑھوں، چیپٹر 11 ورس 3، اور بلکہ 2 سے پڑھتا ہوں میں، لکھا ہے خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا، اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو مال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ خیر، یہ تو میں نے صرف اس لیے بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں کسی بھی سینس میں جو ہے وہ وی آئی پی نہیں سمجھنا۔ ہاں، ایک چیز کی اتھارٹی ہونا ایک الگ بات ہے، اگر خدا نے آپ کو اتھورائز کیا ہے کسی چیز کے لیے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کا اقرار اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا آپ کے ارد گرد لوگوں جو ہیں ان کا اقرار، اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں کہ جو خود دھوکے میں ہیں، بلکہ خدا کے کلام کے ساتھ وہ باتیں ثابت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس چیز کو بھی کلیئر کرتا جاؤں، ہم نے آلریڈی پہلے کچھ آڈیوز میں اس چیز کو دیکھا، خاص طور پہ رسولوں کی خدمت کے تعلق سے ہم نے جب بات کی تو ہم نے اس وقت یہ بات کہی کہ دیکھیں رسول وہ ہو سکتا ہے جس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا ہو۔ اب کیسے دیکھا ہے یہ وہ خداوند جانتے ہیں، بتا کہ دیکھیں خدا یسوع مسیح تو آسمان پر چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دمشق کی راہ پر اپنے آپ کو پولس رسول پر ظاہر بھی کر دیا۔ اب بندہ سوچے خداوند نے تو کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو پوری ساری دنیا مجھے دیکھے گی، لیکن وہاں پر وہ آ گئے اور وہ دکھا بھی گئے اپنا آپ سب کچھ اس کو۔ کیا کریں گے اب ہم کہیں گے جی پولس رسول جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہ مانیں، جبکہ پولس رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کی خدمت ہمارے سامنے ہے۔ سو خیر، یہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں خداوند کو دیکھنا پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہے؟ وہ خداوند کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خواب میں آپ نے جو جیزس مووی میں جناب کریکٹر آئے ہیں وہ دیکھ لیا آپ نے، یا پیشن آف کرائسٹ والے دیکھ لیے تو آپ نے کہا جی میں نے اسی کو دیکھ لیا، کیونکہ وہ تو آلریڈی آپ کے ذہن میں امیجز بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو اپنا دیدار جب کروائیں گے وہ بالکل ڈیفرنٹ دیدار ہوگا، اور اس دیدار کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی یہ خداوند ہے، یہ کوئی میرا دماغی خیال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو پہلی چیز کہ رسول جو ہے وہ اس نے خداوند کو دیکھا ہو۔ سیکنڈ چیز یہ کہ خداوند نے اس کو آرڈین کیا ہو، ڈیفینیٹلی وہ اپنے پاک روح کے ذریعے سے اس کو آرڈین کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس کے ہاتھ سے پھر نشان اور عجیب کام معجزے ہوں۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے پہلی دونوں چیزوں کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا، یعنی کہ پیچھے ڈال دی، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جناب فلانی اور فلانا جناب جو ہے وہ اپنا پاسٹر اور فلانا ایونجلسٹ اور فلانی وہ جناب جو منسٹری ہے وہ عورت جو ہے اس نے
اس کے پیچھے اتنے لوگ لگے ہیں اور اتنی بڑی بڑی وہ منسٹری چلا رہی ہے اور اس سے بڑے موجر ہوتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا اسٹینڈرڈ ببلیکل اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, وہ مت جو ہے غلط چیزوں کو اسٹینڈرڈ بنائیں اس طریقے سے. یہ چیزیں کیوں میں اسٹینڈرڈ کہہ رہا ہوں نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ تو شیاطین کی گمراہ کرنے والی روحیں بھی کریں گی. ایسے ایسے لکھا ہے نشان اور عجیب کام دکھائیں گی کہ ہو سکے تو برگزیدہ کو گمراہ کر لیں. یعنی الیکٹڈ تک پہنچنا بہت مشکل ہے, بہت دور کی بات ہے الیکٹڈ تک پہنچنا. نشان اور عجیب کاموں کی مجھے کائنڈلی کبھی آپ دلیل نہ دیجیے گا. دیٹ از دا ویکسٹ ایور آرگیومنٹ جو میں اپنی زندگی میں جس کو ویلیو دوں, کہ فلانے بندے کے ہاتھ سے یا فلانی بندی کے ہاتھ سے نشان اور عجیب کام ہوتے ہیں تو اس کو ہم نیور نیور ایور کبھی بھی یہ چیز جو ہے اس کو معیار مت بنائے. یہ وہ چیز ہے جو ابلیسی قوت استعمال کرتی ہیں گمراہ کرنے کے لیے. اس چیز کو معیار نہیں بنانا. ایک یہ ہم بڑا حیران ہوتے ہیں اس بات کو سن کے, یار ہر بندہ آج کل یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کے روح نے یہ بات کہی ہے. تو خدا کی روح کو آپ جانتے ہیں, خدا کا روح کون ہے؟ مجھے خدا نے کہہ دیا, مجھے خدا کے روح نے یہ دکھا دیا, مجھے خدا کے روح نے یہ کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کا روح کسی کو دکھا نہیں سکتا, یا کسی نے جو ہے وہ ہر بندہ ہی ایسے غلط کہہ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن فیشن بن گیا ہے. پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ a person should be very much responsible in saying anything like this. بہت زیادہ رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص یہ بات کہنا چاہے کہ مجھے خدا نے یہ بات کی, خدا کے روح نے بات کی, اب بھائی آپ ہے کون؟ خدا کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق ہے تو آپ کی حالت کیا ہے؟ میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کو BMW سے باہر نکلنا چاہیے یا آپ کو بڑے مہنگے مہنگے سوٹ پہنے ہوتا ہے آپ کہیں خدا. یہ بھی معیار نہیں ہے. آپ پھٹے پڑے کپڑوں میں ہیں, خدا آپ سے بات کرتا ہے, میرے لیے آپ بہت قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی روحانی اپروچ کیا ہے اور آپ کی پریکٹیکل لائف کیا ہے؟ چھوڑ دیں کپڑوں کو, چھوڑ دیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے نہیں ہے, آپ بھوکے ہیں, کھائے ہوئے ہیں, آپ غاروں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, نو ایشوز, وہ سب چیزیں الگ چیزیں ہیں. لیکن آپ کی روحانی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ کس حد تک روحانی طور پر مضبوط ہیں؟ آپ کی عملی زندگی خداوند سے کتنی متاثر ہے؟ یہ چیزیں اگر آپ میں نہیں ہیں, آپ میں برداشت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ میں سچ بولنے کی طاقت نہیں ہے, آپ میں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کی جرت نہیں ہے, آپ انتہائی کمزور انسان ہیں. میں سمجھتا ہوں چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں. یو نیڈ ٹو ریفریش یور سیلف, ریسٹارٹ. بہتر ہے ریسٹارٹ کر لیں. موبائل ہینگ ہو جاتا ہے, لیپ ٹاپ لوگ ریسٹارٹ کرتے ہیں, پر ماننے تو صحیح یار یہ ریسٹارٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس کو ہینگ ہو گیا, ہم ہینگ ہوتے ہیں, ہم ریسٹارٹ کرتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم بالکل صحیح جگہ پہنچے ہوئے. ایسے نہیں یار, یہ چیز غلط ہے مجھے. اور پھر جو آیات کے ساتھ لوگ اس طریقے سے کھیلتے ہیں, کھیلنے سے مراد یہ کہ اپنی پتہ نہیں کون کون سی تفسیریں بنا دیتے ہیں, مجھے ان کے اوپر بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے, بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اور یقین کریں میں اگر اپنی فیلنگ بتاؤں آپ کو تو میرے سینے میں آگ لگتی ہے, مجھے جلن شروع ہو جاتی ہے میرے سینے میں. جیسے بندے کو کوئی کہتے کہ آگ لگ جاتی ہے نا اندر کی, یار یہ بندہ یہ خدا کے کلام کی کیا یہ رسپیکٹ کر رہا ہے, یار یہ کیا بات کر رہا ہے. کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں بھائی آپ, کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں. کہاں مریم مگدلینی بیٹھی ہیں خدا یسوع مسیح کے پاس, وہ کیا بات چیت ہو رہی ہے وہاں پر, مارتھا کیا کر رہی ہیں وہاں پر, آپ اٹھا کے اس کو کس چیز سے لنک کر رہے ہیں. کہاں جناب قبر پہ خواتین چلی گئی ہیں, آپ نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں, وہ چلی گئی ہیں, اٹھا کے آپ نے اس کو خدمت سے لنک کر دیا. میں سمجھتا ہوں خدا یسوع مسیح نے پہلی دلیل, خدا یسوع مسیح سے 12 شاگرد جو چنے وہ میلز تھے سارے. کیوں؟ مجھے اس چیز کا جواب آپ دیں. انہوں نے کوئی بھی عورت جو ہے, کوئی بھی فیمیل, یہ مت سوچیے گا کہ میں اگینسٹ بات کر رہا ہوں اس چیز کے کہ عورتوں کا خدمت, میں بھی اس بات آ ہی نہیں رہا. میں صرف آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں. میری جاب بینگ اے ٹیچر کیا ہے, میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھوں. اس چیز کو فوری طور پر ڈیسائیڈ مت کیجیے گا, ابھی ہم انڈر ڈسکشن ہے. میں صرف فیکٹس رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اور کوشش یہی کروں گا کہ سچائی, دلیری اور ایمانداری کے ساتھ فیکٹس کو رکھوں. مجھے بتائیں, میری طرف سے نہ صحیح کوئی اور ہی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی خدا یسوع مسیح نے 12 شاگرد چنے, ایک بھی عورت کیوں نہیں چنی انہوں نے؟ ایک بھی عورت انہوں نے 12 شاگردوں میں کیوں نہیں چنی؟ وائی؟ پہلا کوسچن. دوسرا, رسول بننے کا معیار اگر یہ ہے کہ جو شخص خدا یسوع مسیح سے کو ملا ہو, جس نے دیکھا ہو,
तो मरियम मगदलीनी तो फिर बहुत ज्यादा खुदा यीशु मसीह के नजदीक थी। देखा तो फिर मार्था ने भी था, देखा तो फिर लाजर ने भी था जो मुर्दों में जिंदा किया गया, देखा तो फिर निकोदेमस ने भी था, ठीक है। और इनके अलावा मेरा ख्याल है कि वो ज़कई भी था, उसने भी देखा था, इवन उसने तो एक्सेप्ट भी कर लिया था, माल भी अपना दे दिया उसने लोगों को, पता नहीं कितना कितना। अब क्या ये सारे रसूल हो गए? क्या मैं समझ लो कि निकोदेमस रसूल बन गया, या मैं समझूं कि जनाब ज़कई जो है वो रसूल बन गया, या मरियम मगदलीनी हर वक्त खुदा यीशु मसीह के साथ थी तो वो रसूल बन जाए? यार ऐसी बातें नहीं करते होते। देखेंगे एक अलग बात आपके सामने, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। खुदावंद ने जिनको चुना उनको ही मुकर्रर किया, उन्हीं को रसूल बनाया, और उनके अंदर खुदावंद ने किसी खातून को नहीं चुना। पहले नंबर पर तो ये चीज़। दूसरी बात ये कि खुदावंद को कोई प्रॉब्लम नहीं है औरतों के साथ बात करने में। खुदावंद मोहब्बत की जब बात आती है तो सारी खुदावंद की क्रिएशन है। खुदावंद ने अपने बाप की इंस्ट्रक्शन के ऊपर सब कुछ बनाया, और इंसान को तो अपने हाथों से बनाया उन्होंने। फिर उसका ऑपरेशन करके उसमें से हवा भी निकाली बाहर उन्होंने, हवा से मुराद मसलन ईव, ठीक है। अब उस चीज से मुझे ये बताएं कि यार वो प्यार नहीं करेंगे? वो बिल्कुल प्यार करेंगे। सामरी औरत जो है वो आ गई जनाब को, मैं फिर उससे जो है बात कर ली तो जी उसको रेनिक कर दिया, ये नहीं हो गया, वो चले गई, वो लोगों को ले आई। मतलब कहाँ से आप किस तरह के मतलब आर्ग्यूमेंट्स निकाल रहे हैं बीच में से? मतलब मैं आप बेशक मुझे लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे भाई ये फील करें कि मैं उनकी बातों को ले रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, उसको पर्सनल मत लें। अपने अंदर ये बर्दाश्त लेके आए कि खुदा के कलाम को उसकी सही हालत में बगैर आमेज़श के हमने एक्सेप्ट करना है। हमने एक्सेप्ट करना है, मतलब हमारा पैरामीटर कोई नहीं हमारे सामने। मैं बता दूं आपको कि हम इस तरह करेंगे, मुझे वो होगा तो हम करेंगे, नहीं। खुदा का कलाम बिल्कुल क्लियर है। मैं सिर्फ चंद बातें आज करूंगा इस ऑडियो के अंदर आपके सामने, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ी बातें पहले की हैं, उसमें से कुछ मैं ऐड करूंगा। देखिए, खुदा के कलाम में हुक्म, रिवायतें, वाकयात और इजाज़ात, बहुत सारी बातों में से मैंने ये 4 चीजें सब आपके सामने रखी हैं। खुदा के कलाम में क्या है? हुक्म है। हुक्म वो है जो आपको मानने ही पड़े हैं। रिवायतें, रिवायत क्या होती है? रिवायत होती है उस हुक्म को हम किस तरह प्रैक्टिकली माने, उसका तरीकाकार क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको अगर ये कहा गया है कि पाक बनो जिस तरह के मैं पाक हूं, ठीक है। अब आपने वो कैसे जो है वो पाक बनना है, ठीक है। चलें, ओल्ड टेस्टामेंट की बात कुर्बानियों के ताल्लुक से हम करते हैं, लेकिन उसको न्यू टेस्टामेंट में ले आते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने अगर इब्रानियों में से एक आयत पढ़ूं, इब्रानियों के खत में से अगर हम एक आयत को पढ़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। पहली आयत पढ़ने लगा हूं मैं, चैप्टर 13, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15। लिखा कि बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। अब आप एक जाके पूछते हैं खुदा के खादम से, जी ये तो लिखा है कि जी हम की कुर्बानी इनने अपने होंठों का फल चढ़ाया, लेकिन चढ़ाए कैसे? अब वो बात जो आपको बताएगा, अगर वो खुदा की तरफ से अपॉइंटेड है, वो अपने टेवे ना लगाने शुरू कर दे। जो खुदा की तरफ से अपॉइंटेड अनॉइंटेड है, जो तरीकाकार वो बताएगा, बेसिकली वो होगी रिवायत। तो हुक्म नहीं है, याद रखें, वो है रिवायत कि जिसको करना कैसे है। अगली आयत लिखी 16वीं लिखा है चैप्टर 13 वर्स 16 हिब्रूज लिखा है कि और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अब एक बंदा पूछता है कैसे? भलाई तो चलो जी ठीक है, मुझे पता है कि अच्छा काम होता है, लेकिन मैं किस तरह भलाई कर सकता हूँ? फिर उसको बताया जाता है कि यही तरीका कार है भलाई करने का, तू ऐसे कर भलाई। सखावत ना भूलो। अच्छा सखावत क्या करूं? मैं रोड पे खड़े होकर पैसे बांटने शुरू कर दूं? नहीं, सखावत कैसे करनी है? जो रिवायत है। जिस दिन हमने दुपट्टे की बात की थी, मैंने उस दिन ये बात बताई थी कि देखें ये रिवायत है कि जब कोई औरत दुआ या नबूवत करे तो अपने सर को ढांके, अपने सर को कवर करे। इट मीन्स के यानी कि तो अगर वो पूछता है जी मैं दुआ तो ठीक है जी, खुदा ने हुक्म दे दिया कि दुआ करनी है आप, ठीक है, लेकिन मैं करूं कैसे? मतलब मुझे प्रैक्टिकली उसमें क्या करना चाहिए? मैं मतलब सुबह मतलब जब लगा ले उठूं तो मैं पहले मुंह हाथ धोऊं या मैं वैसे डायरेक्ट ही आ जाऊं? तो उसको बताया जा रहा है कि नहीं, बस पहले आप जो है वो
थोड़ा अपने आप को तैयार करें, फ्रेश करें, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो, अच्छा वो कहते हैं जी मैं मतलब क्या करूँ उसमें, मतलब मैं नहा लूँ या सिर्फ मुँह हाथ धो लूँ। मतलब अब ये जितनी भी चीज़ें आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप चल जाएंगी, ये प्रैक्टिकली सारी क्या हैं, ये रवायतें हैं। कभी भी इनको कंफ्यूज ना करें हुक्मों के साथ, ठीक है। हुक्म एक डिफरेंट चीज़ है, रवायत उसको करने का तरीकाकार है। और पौलुस रसूल ने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि मैंने खुदावंद की रवायतें तुम तक पहुंचा दी हैं और तुम उनको मानते हो, मुझे खुशी है इस बात की। चैप्टर 11 जो हमने पढ़ा था 1 कोरिन्थियंस में, ठीक है। सो अब आप इस रवायत के अगर अगेंस्ट चलते हैं तो इट मीन्स कि फिर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। आप कमांडमेंट को हो सकता है फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर उस रिवायत के तहत फॉलो नहीं कर रहे जिस तरीके से खुदा के खादम ने आपको बताया है, तो फिर इट मीन्स कि वो आप उस हुक्म को उस तरीके से कर ही नहीं रहे, ठीक है। आपको ये तो कहा गया है कि आप जनाब तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। अब आप इबादत क्या करते हैं, आप जाते हैं, आप जाके जनाब बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और दरख्त के आगे जनाब सजदे शुरू कर देते हैं। अब आप कहते हैं कि मैं कोई किसी मबूद को सजदा नहीं कर रहा, मेरे दरख्त मेरा मबूद नहीं है, लेकिन आप सजदे करते जा रहे हैं वहां पे बैठ के, ठीक है। आप सोच के गए मैं 50 दफा सजदे करूंगा। अब आपने पूछा किसी से भाई कि इबादत करनी तो कैसे करनी है मैंने? आज हमारी हर कलीसिया का अपना ही तरीकाकार है इबादत करने का, कुछ का स्टैंडर्ड है, कुछ का नॉन स्टैंडर्ड। मतलब कहा ये रवायतें कौन दे गया? रवायतें तो खुदा के रसूल देते हैं, ठीक है। उन्होंने रवायतें दी हैं लोगों के, जी इस तरीके से आपने जो है वो इबादत करनी है, ये तरीकाकार है इबादत करने का, ठीक है। अब आपको तरीकेकार का ही नहीं पता तो इबादत क्या करेंगे आप भाई? फिर उसके बाद आ जाती हैं चीजें वाकयात की। ये एक वाकया है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मरियम मगदलीनी और मार्था के घर में गए हैं। ये एक वाकया है, वो वहां बैठी हुई थी उनके पास, ठीक है, वो खाना बना रही थी, ठीक है। ये एक वाकया है कि वो कुएं पर चले गए और वहां पर उन्हें एक सामरी औरत मिली और उन्होंने उससे पानी मांगा। ये एक वाकया है, ये बताया जा रहा है कि इस तरह से फलां टाइम पे हुआ, ठीक है। वहां पर कोई हुक्म तो नहीं नजर आ रहा हमें, या कोई रवायत तो नहीं नजर आ रही हमें। ये हमने देखना है कि वहां पर हुक्म है कोई कि नहीं, वहां पर कोई रवायत है कि नहीं। ये तो होता देखे जी, वो उसे कहते मुझे पानी पिला, हुक्म दिया ना, वो आगे से पानी लेके आती डाल के ग्लास में, वो कहते ग्लास में क्यों लेके आई, मुझे पानी पिलाना तो मुझे वो पूरा मटका ले गया मेरे लिए। तरीकाकार क्या है? रवायत ये है कि मुझे उनको पानी पेश करना है तो मटके से पेश करना है मसलन, लेकिन वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने पानी मांगा, मांगने में बंदा क्या करता है, कैसे करता है मांगे, जब किसी को चीज मांगता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर हुक्म दिया होता तो वो कहते हुक्म की सेंस में बात होती वहां पे कि उसको हुक्म दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये तो एक आम औरत है और मुझसे अनजान है, ये मैं उसको हुक्म दूंगा तो ये क्या समझेगी, ठीक है। उन्होंने वहां पर उसको सिंपली सिर्फ उसे पानी मांगा और उसने कहा आगे जनाब भरने को तेरे पास है नहीं, मैं तुझे कैसे दूं पानी। फिर उन्होंने उसको बताया कि अगर तुझे पता होता है कि तेरे से पानी कौन मांग रहा है तो फिर तुझे पता चलता है इस चीज का। मतलब वो पूरा वो क्या है, वो एक वाकया है पूरा। फिर खुदा के कलाम में इजाजतें हैं, इजाजत जिसे मैं कह रहा हूँ, मतलब उसमें बहुत सारी चीजों में इजाजत है जिसको पौलुस रसूल खुद भी बयान करते हैं कि जी ये चीज मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता बल्कि इजाजत के तौर पर कहता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि मियाँ बीवी कभी एक दूसरे से जुदा ना हो, लेकिन आपस की रजामंदी से थोड़ी मुद्दत तक सिर्फ दुआ के लिए वो अलग हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये मैं हुक्म के तौर पर नहीं, इजाजत के तौर पर कहता हूँ। यानी हुक्म नहीं है ये आप पर, यानी इस तरीके से अब आपको इसको देखा सारा करना है, इसको आपने जो है वो लिंक करना है कि यार कौन सी चीज जो है वो हुक्म है, कौन सी चीज जो है वो रिवायत है, कौन सी चीज जो है वो वाकया है और कौन सी चीज जो है वो इजाजत है। और इससे आगे भी जो है मजीद बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये 4 ही अगर आप समझ लें तो वो इनफ है आपके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए जो हम स्टडी कर रहे हैं। इस टॉपिक को जिसको हम खासतौर पर स्टडी कर रहे हैं उसको देखें। आप मुझे रवायतें निकाल के दे दें और कहें जी देखें जी ये हुक्म बन गया, तो जो हुक्म है मैं उसको छोड़ दूंगा। मेरे लिए हुक्म जो है वो रिवायत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवायत के बाद रिवायत मेरे पास जो है वाक्य से ज्यादा अहमियत रखती है, और वाक्य जो है शायद वो मेरे लिए जस्ट इवेंट है कि जनाब ऐसे हुआ, उससे मैं अगर कुछ सीख सकूं तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्ट कमांडमेंट।
और उस कमांडमेंट को मैंने पूरा कैसे करना है, उसके लिए उसकी प्रोपोज्ड रिवाइज जो तरीका कार है, ठीक है जी। लिहाजा इस चीज को अगर आप देखें तो ये आपके सामने इस ताल्लुक से आती है। अब ये कि हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की, ये जो 5 खिदमतें हमने जो पढ़ी हैं और अभी स्टिल हमारी जो 5वीं खिदमत चल रही है, जिसके ताल्लुक से हम बातचीत अभी फर्दर करेंगे, लेकिन जितनी हमने कर ली है अभी तक, देखिए वो 5 खिदमतें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशंस कहलाती हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक अथॉरिटी उसके अंदर होती है, ठीक है। किसी जगह पर भी किसी भी इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, वो कोई वहाँ के मसलन नौकर तो नहीं होते ना, वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ की अथॉरिटी होती है, ठीक है। और चाहे वो अपने मुंह से बेशक कहें जितना मर्जी, वो जनाब हम आपके खादम है, हम आपके खादम है, लेकिन उनको गवर्नमेंट जो है वो तो कभी भी जो है उनको एक वाकई एक स्ट्रीट पर्सन की तरह ट्रीट तो नहीं ना करेगी। उनके प्रोटोकॉल्स होंगे, उनके साथ जनाब गाड़ियां होंगी पुलिस की और इधर उधर की जनाब, और वो सारा कुछ होगा। अब आप देखेंगे यार ये तो कहते हैं हम खादम है, तो ये क्या है। आज हो सकता है खुदा के खादमों के साथ आपको उनके प्रोटोकॉल नजर ना आते हो जो हकीकी खादम है, ठीक है। झूठों ने तो बड़े प्रोटोकॉल रखे हुए हैं, उनके तो साथ पता नहीं कितनी फोर्स आती है और गाड़ियां लगती हैं आके, और जनाब वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन जो खुदा का सच्चा खादम, उसके साथ खुदावन का प्रोटोकॉल चलता है, खुदावन के फरिश्ते उसके साथ चलते हैं जो उसको कवर करते हैं, और वो उसके साथ चल कर वहाँ पर जहाँ पर वो जाता है कलाम सुनाता है, वो हर चीज़ को जो है वो ऑन रिकॉर्ड रखते हैं। सो खुदा का प्रोटोकॉल उसके साथ होता है, और क्या चाहिए, ठीक है जी। सो इस चीज के अंदर अभी मैंने बहुत सारी बातें जो हैं वो इस ताल्लुक से करनी है, और मैं उन चीज़ों के चाहूँगा कि अकेले के लिए हम उस चीज़ का एनालिसिस भी करें कि ये क्या इसके अंदर जो है वो हकीकत है। सिर्फ चंद बातों को जहन में रख ले साथ साथ जिनको मैं भी कवर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो पहला ग्रंथियों फर्स्ट ग्रंथी चैप्टर 14 वर्स 32 में ये बात देखिए कि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, खुदा नहीं अबतरी का बानी। अबतरी क्या होती है? डिसऑर्डर, ठीक है। खुदा ऑर्डर का बानी है, खुदा को ऑर्डर पसंद है। ये डिसऑर्डर जो है ना ये इंसानों ने क्रिएट किए हैं, ठीक है। लिहाजा इस चीज को जो है वो भी आप देख लें। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप बात करते हैं कि जी खुशखबरी सुनाना और ये वो, मतलब हम इन चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, खुशखबरी सुनाना, क्योंकि ये चीज़ तो 3 जगह पर खुदा के कलाम में आ चुकी है। यसाया की 53 बाब, जैसे आइज़िया चैप्टर 53 वर्स 1, जॉन चैप्टर 12 वर्स 38, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 16 के हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। और ये कौन कह रहे हैं? ये तीनों ही यसाया के सहीफे को कोट कर रहे हैं। एक जगह पर यूहन्ना कोट कर रहे हैं, एक जगह पर रोमन्स कोट कर रहे हैं, और एक जगह पर जो है मतलब रोमन्स यानी पौलुस रसूल जो है रोमन्स को कोट कर रहे हैं, और तीसरी जगह पर ओरिजिनल जो है वो आइज़िया ने कहा कि हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। मतलब सही खादमों के पैगाम का यकीन कोई नहीं करता यार, और झूठे खादमों के पैगामों को बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। और हम उनकी शहवत परस्तियों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और वो अपने फायदे के लिए जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बनते जाते हैं, ठीक है। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ तक रख रहा हूँ इस बात को, और चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत आप अगर करना चाहें कोई तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने अभी बहुत सारी बातों को नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ इतना ही जो है वो चाह रहा था कि इसकी तमहीद जो है वो बंद जाए शुरू में, और बेसिक जो है वो सामने आ जाए। अभी इसके अंदर बेसिक भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू था जो मैंने दिया है इस ताल्लुक से, और फर्दर अब जो है वो हम हर आयत को बारीक बीनी से स्टडी करेंगे कि कौन सी वर्स जो है वो किस तरीके से आपने बयान की है, और खुदा का कलाम जो है वो दरअसल उसको किस तरीके से बयान करता है। खुदा के कलाम की रोशनी में न्यूट्रल होकर दलेरी के साथ उस बात को हमने करना है, और आपने उस चीज़ को दलेरी के साथ सुनना है और बर्दाश्त करना है। अगर वहाँ पर कहीं आपको जो है कहीं लगता है कि आपने इसको मिसअंडरस्टैंड किया है तो उस अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट कीजिए, ताकि ये मामला जो है ये मज़ीद तूल ना पकड़े, बल्कि ये चीज़ जो है ये टाइमली कवर हो जाए, और आप वाकई खुदा से
बरकतें हासिल करें। इस चीज़ को बरकतों के साथ कंफ्यूज मत करें कि मेरे जनाब जो है वो मैंने फलान जगह पे जाके मुनादी की और ऐसे हो गया, रूहें बचा ली, रूहें बच गई। रूहों के बचने की गारंटी तो आप दे ही नहीं सकते। सबसे बड़ी तो मिस्टेक आप यहीं पे कर रहे हैं। कोई शख्स किसी रूह के बचने की गारंटी नहीं दे सकता। कहीं लिखा हुआ है, मुझे बता दें, कहीं जो है वो मुकाशफा में जो हमने आज पढ़ा है, तो खुदावंद का डायरेक्ट उसके साथ लिंक है। खुदा के बेटे पर ईमान लाना, उसके बाद खुदा के बेटे के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारना, मुआफक उनके अमल के मुआफक अमल करना जिस तरह उन्होंने अमल करके दिखाया, और अपना नाम कायम रखना किताब हयात में। ये सब कुछ लिंक्ड जो है ये खुदावंद के साथ है। ये किसी खादम के साथ लिंक नहीं है इस चीज का कि खादम इस चीज की गारंटी दे दे किसी को भी, जी रूह बच गई जी आपकी। कैसे बच गई आपकी रूह? कोई खादम इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने इतनी रूहें बचा ली हैं। वो आप सिर्फ अपने लेवल तक उस चीज को ले आए कि आपने उनको बताया, उन्होंने खुदा उनको कबूल किया, लेकिन इस चीज की गारंटी आप कैसे देंगे कि अब ये रूह बच गई? क्या पता वो शख्स कुछ दिनों के बाद जो है वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस चला जाए। क्या पता वो शख्स दुनिया के सामने तो नेक बना रहे लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो फेल हो, ओरिजिनली वो फेल हो। क्या पता है कि उस शख्स का फाइनल टाइम पर किताब हयात में नाम ही नहीं, वो आपको पकड़ेगा आगे, भाईजान आपने तो गारंटी दी थी मेरी, जनाब पास्टर साहब तुझे तो गारंटी दी थी मेरी, मेरी रूह बच गई है, या ए ਜਿਹੜੇ 500 ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚ ਲਾਤਾ खुदावंद ने, तुझे तो कैसी रूह बच गई सारियां, यह की हुआ इन्होंने एक ही कर दत। तो वहां पर क्या होगा? क्या इज्जत अफजाई होगी उस खादम की वहां पे जो ये कहता है कि जी मैंने इतनी रूहें बचा ली? ये मत कहा करें यार मैंने रूहें बचा ली, मेरी वजह से रूहें बच गई। और रूहें तो बचनी है, आप खुदावंद जानता है कौन सी रूह बचनी है। आपका काम सिर्फ मैसेज देना है, इतनी दूर तक नहीं जाना। यहां तक कि आपके हाथ से मौजज़ा भी हो गया है तो आप स्टिल यू कैन नॉट क्लेम। ठीक है, कुछ भी जो है किसी भी चीज का क्लेम ना करें। खुदावंद में हम्बलनेस को पैदा करें और देखें कि आर यू ऑथोराइज्ड और नॉट, कि आपने अपनी अथॉरिटी अपने पास ही डेवलप कर ली है। ठीक है, जब गवाही देने की बारी आती है तो उस वक्त हम मुंह छुपाते फिरते हैं, और जब बारी आती है हमारे अपने भाइयों में खड़े होकर बात करने की या बहनों में, तो फिर हम कहते हैं जनाब मैं तो यह भी कर देता था, मैं वो भी कर देता था, मैं भी कर देता। क्या लाइफ है ऐसे शख्स की, ऐसी जो है वो खातून की? मैं दोनों की काउंट करता हूँ इस चीज़ के अंदर। तो खुदावंद को बड़ी बरकत दे। फिलहाल इसको यहाँ तक रखेंगे और फिर इसको जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर देखते हैं इसके अंदर के जो आयात जो है हमारी बहनों ने शेयर की हुई हैं वो कौन कौन सी आयात थी, हम 1 बाय 1 उनको भी देखेंगे, और वो आयात जो भाइयों ने शेयर की हुई हैं उनको भी हम देखेंगे, और फिर हम इन चीज़ों को एनालिसिस इनका पूरा खुदा की पाक मर्जी से ही करेंगे ताकि हम उस नतीजे तक पहुंच सकें कि जिसमें हमें पता चले कि हकीकत क्या है और हम उस हकीकत को तस्लीम करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ।